Assalamualaikum everyone and welcome back to English with Murtaza. Today we are going to study about lesson number 4. The name of the lesson is Thank You Ma'am. Madam Aapka Shukriya. The short stories, book 1, lesson number 4. Thank You Ma'am. Okay, before starting its text, let's have a discussion about its characters and story. So there are two characters in this story. The first one is Roger. Please repeat with me. What is the name of character? Roger. Characters के नाम आने चाहिए आपको MCQs में आपके क्वेश्चन भी बन के आता है characters के ऊपर. इस वजह से characters को understand करना, memorize करना that is necessary. Roger जो है he is a boy of 14 or 15 years. Means के he is 14 or 15 years old. Okay, what did I say? He is 14 or 15 years old. Roger is 14 or 15 years old. हाँ जी, राजर की एज कितनी है भाई? 14 से 15 साल है. Okay, he is weak or frail. Frail का मतलब होता है कमजोर, weak. He is frail like willow white. Willow white. He is weak or frail like willow white. ये willow white की तरह कमजोर है. Willow white जो है that is the name of a tree. इसकी जो branches होती हैं वो बहुत ज्यादा weak होती हैं. मैं भी ये बाद में आपको उस ट्री को दिखाता भी हूँ. तो उसकी जो branches होती हैं वो बहुत ज्यादा weak होती हैं. यानी कि जो रॉजर था उस ट्री की ब्रांचेस की तरह जैसे वो ब्रांचेस वीक थी, ये भी वीक था. तो ये उसने सिंगली यूज किया है. वीक लाइक विलो वाइट, जैसे एज सॉफ्ट एज बटर, एज कोल्ड एज आइस. ठीक हो गया. तो ही वाज फ्रेल लाइक विलो वाइट. ये बिल्कुल दुबला पतला और कमजोर सा था. ओके, ही वाज वेयरिंग ब्लू जीन्स. इसने क्या पहना हुआ था? He was wearing blue jeans and tennis shoes. इसने ब्लू जीन्स और टेनिस शूज पहने हुए थे. ब्लू जीन्स पहना हुआ था और इसने टेनिस के जूते पहने हुए थे. He tried to snatch the purse of a lady. He tried. Practice and speak with me. He tried to snatch the पर्स ऑफ अ लेडी. ये औरत के पर्स को खींचने की कोशिश करता है. उस औरत का क्या नाम होता है? सेकंड कैरेक्टर जो है हमारा, उसका नाम है मिसेस लोयला. मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स. That is the name of a one woman. एक औरत का नाम है मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स. She is the second character of the story. It is clear to all of you? Yes. दो characters थे इसमें, एक रॉजर का और दूसरा मिसेस लोयला. अरे बोलो ना, याद करना है आपने. मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स. जी ए साइलेंट है. Washington Jones. Okay, she works in a hotel beauty shop. In a hotel beauty shop. ये होटल नहीं होता, it's hotel. She works in a hotel beauty shop. ये होटल की जो ब्यूटी शॉप है, ब्यूटी पार्लर, वहां ये काम करती है. She is a large woman. यानी कि ये बहुत ही भारी भरकम और लंबे कद वाली हो जाता है. She is a large woman with a large purse. ये खुद भी बहुत बड़ी होती है और इसका पर्स भी बहुत बड़ा होता है. ठीक है, भारी होता है. Okay, she is very kind and generous. And how she was generous.
शी वॉज काइंड एंड जेनरस। आपको उल्टा तो कुछ नहीं हो रहा, अच्छा उल्टा जो लिख रहा हूं, शी वॉज काइंड एंड जेनरस, शी वॉज काइंड एंड जेनरस, शी वॉज अ लार्ज वुमन, शी वर्क्स इन अ होटल ब्यूटी शॉप। ठीक हो गया। शी you can say teaches the difference between good and bad, right and wrong. She teaches the difference between good and bad, right and wrong to Roger. Roger को सही गलत की तमीज सिखाती है। तो she is a good woman. She also helps him with money. इसको पैसे भी देती है, इसकी हेल्प करती है। अच्छा बेटा कैरेक्टर्स क्लियर हो गए। पहला कैरेक्टर किसका है? रॉजर। बताइए रॉजर के बारे में। रॉजर कैसा था भाई? He is 14 or 15 years old. He is frail or weak like willow white. He was wearing blue jeans and tennis shoes. Next character is Mrs. Loyola Bates Washington Jones. She works in a hotel. अरे बोलो ना, मेहमान बन के बैठ जाते हो यार। She works in a hotel beauty shop. She is a large woman. She is very kind and generous. ये kind भी है, generous भी है। अब जो story है, it starts in this way. Mrs. Loyola Bates Washington Jones was going alone on a road, and it was 11 o'clock at night. There was darkness everywhere. At that time, a boy whose name was Roger, he came behind her and tried to snatch her purse. In this attempt, he fell down because of losing his balance, and he was caught by Mrs. Loyola Bates Washington Jones. She punished him, dragged him in the street, and took him to her home. When she reached there, she asked him why was he trying to snatch her purse. He said that I wanted to get blue suede shoes. Suede कहते हैं leather को। ठीक हो गया। He wanted to buy blue suede shoes. That's why he tried to snatch her purse. Then the lady teaches him the difference between good and bad, right and wrong. She advised him to behave in a proper way. She advised him to become a good boy. She also served him with meal. She also gave him $10 to buy the shoes. Is it clear to all of you? Yes. स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि जो मिसेस लॉयला बेट्स विशिंगटन जोन्स है, ये सड़क पे जा रही होती है, अकेली होती है, रात का वक्त होता है, अंधेरा होता है। तो एक लड़का जिसका नाम रॉजर है वो इसके पीछे आता है, उसका पर्स खींचने की कोशिश करता है। जो ही पर्स खींचने की कोशिश करता है वो नीचे गिर जाता है और इसको जो मिसेस लॉयला बेट्स विशिंगटन जोन्स हैं उसको पकड़ लेती है। उसको थोड़ा पनिश करती हैं, गली में ड्रैग करती हैं, घसीट कर घर लेके जाती हैं। वहां जाकर उससे पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वो बताता है कि मुझे जूते चाहिए थे। आई एम गोइंग टू मेक द लॉन्ग स्टोरी वेरी ब्रीफ, कि मुझे ब्लू स्वीट शूज चाहिए थे, नीले चमड़े के मैं जूते खरीदना चाहता था, उसके लिए मुझे $10 चाहिए थे, इस वजह से मैं आपका पर्स खींच रहा था। तो फिर उसे समझाती है द शूज गॉट बाय डेविल्स वेज वुड बर्न योर फीट। अगर तुम शैतानी तरीके से जूते खरीदोगे लोगों की चीजों को चोरी करके, तो वो जूते तुम्हारे पाँव को जला देंगे। ठीक है। तो उसको अच्छी अच्छी नसीहतें करती है। वो लड़का जो है ही प्रोमिसेस, रॉजर प्रोमिसेस हर दैट नेक्स्ट टाइम इन द फ्यूचर ही वुड बिहेव लाइक अ गुड बॉय। ठीक है। वो चला जाता है। तो स्टोरी कम्स टू एन एंड इन दिस वे। ठीक है। तो बड़ी काइंड और जनरस उसको खाना भी देती है, उसका मुंह भी दिलवाती है, उसको $10 भी देती है, फिर वो चला जाता है। अब जो इस स्टोरी का मॉरल लेसन है, द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट criminals are also human beings. They should be treated with decency
विद काइंडनेस एंड लव, कि क्रिमिनल्स भी इंसान होते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से और उम्दा तरीके से पेश आना चाहिए। और खुसूसन जो इमेच्योर बच्चे होते हैं, इमेच्योर एज में लोग चोरी करते हैं, जैसे रॉजर था, such people shouldn't be sent to the jails, otherwise they would become a criminal। ऐसे बच्चों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए, तो पक्के क्रिमिनल्स बन जाएंगे। This should be taught with love and care, उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक हो गया, ताकि ये क्रिमिनल्स ना बने। ठीक हो गया, तो वो मैसेज ये देना चाहता था कि जो इमेच्योर बच्चे होते हैं, who are not habitual, ठीक है, जो चोरी के आदी नहीं होते, तो उनको आपने प्यार मोहब्बत से समझाना है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टोरी समझ आ गई, करेक्टर समझ आ गए? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रांसलेशन। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, लेसन नंबर 4, थैंक यू मैम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ एंड इट इज इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके, स्टार्ट करेंगे। She was a large woman, वो एक बड़ी खातून थी, दराज कद खातून थी, बड़े कद वाली औरत थी। With a large purse, और उसके पास एक बड़ा पर्स था। That had everything in it, जिसमें हर चीज थी। That had everything in it, जिसमें हर चीज थी। बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? But सिवाय, बट का मतलब एक्सेप्ट है, सिवाय है। बट हैमर एंड नेल्स, सिवाय हथौड़े और कीलों के। समझ आ रही है? यानी तो वो एक दराज का खातून थी और उसके पास एक बड़ा पर्स था जिसमें हर चीज थी सिवाय हथौड़े और कीलों के। यानी कि उसका पर्स बहुत भारी था, भरा हुआ था। ठीक है, मे बी शी वर्कड इन अ होटल, ब्यूटी शॉप, ब्यूटी पार्लर, क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, तो इस वजह से मे बी मेकअप की बहुत सारी चीजें उसके पास। ठीक जी, शी वॉज ब्यूटिशियन। ओके जी, बट का मतलब सिवाय करना है, एक्सेप्ट। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, उसकी यानी कि पर्स की एक लंबी डोरी थी, बेल्ट था, CORD, कॉर्ड था। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होता है? CORD, कॉर्ड या बेल्ट कहते हैं। ठीक हो गया, इसको स्ट्रैप को। पर्स की एक लंबी डोरी थी एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। कैरिड इट स्लंग, स्लंग होता है लटकाना, उसको लटकाए रखती थी। स्लंग, हंग, हैंग, हंग हंग होता है ना लटकाना, हैंग, हैंग फांसी देना होता है। तो स्लंग का जो सिनोनिम है वो क्या होता है? हंग। स्लंग का हंग, बेटा नजर आती? ओके, हंग होता है। इट वॉज, अच्छा, अक्रॉस हर शोल्डर, अपने कंधों के। पर्स की एक लंबी डोरी थी और उसने इसे अपने कंधों के गिर्द लटकाया हुआ था, या वो इसे अपने कंधों के गिर्द लटकाए रखती थी। It was about 11 o'clock at night, ये तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था। हाँ जी, MCQs में आता है। कितने बजे का वक्त था जब वो पर्स खींचने की कोशिश करता या वो चल रही थी? तो इट वॉज 11 o'clock। ओ क्लॉक में ओ किस चीज का कंट्रैक्शन है? ओ जो है, ओ एपोस्ट्रोफी इज द कंट्रैक्शन ऑफ आर। अच्छा बेटा, इट वॉज अबाउट 11 o'clock at night, करीबन रात 11 बजे का वक्त था। डार्क, तारीकी थी। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेले या तन्हा जा रही थी। When a boy ran up behind her, जब एक लड़का दौड़ते हुए उसके पीछे आया, and tried to snatch her purse, और उसका पर्स खींचने की कोशिश की। ये तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था, अंधेरा था, वो अकेले चल रही थी। जब एक लड़का पीछे से आया, दौड़ता हुआ आया और उसका पर्स खींचने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक, डोरी टूट गई। विद अ सडन सिंगल टग, अचानक दिए जाने वाले एक ही झटके से। टग कहते हैं जर्क को। टग किसे कहा जाता है बेटा?
ARK, चल। दैट किसका सिनोनिम है भाई? दैट इज द सिनोनिम ऑफ टग। अच्छा जी, सडन सिंगल टग, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, लड़के ने पीछे से दिया। रस्सी पीछे से लड़के की तरफ से दिए जाने वाले अचानक एक ही झटके से टूट गई। ठीक है, लड़के ने ऐसे खींचा ना, झटका दिया तो वो रस्सी टूट गई। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स, लेकिन लड़के के वजन ने और पर्स के वजन ने कंबाइंड, दोनों ने मिलकर कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, उसके तवाजुन को बिगाड़ दिया, उसके बैलेंस को बिगाड़ दिया। लेकिन लड़के के वजन ने और पर्स के वजन ने, दोनों ने मिलकर लड़के के तवाजुन को बिगाड़ दिया। इंस्टेड की बजाय ऑफ टेकिंग अ फुल ब्लास्ट, टेक ऑफ होता है लेकर भाग जाना, कैरी ऑफ, रॉब करना, ROB रॉब और कैरी ऑफ, लेकर भाग जाना। टेकिंग ऑफ का ट्रांसलेशन क्या करोगे पुत्र? लेकर भाग जाना। ब्लास्ट, फुल ब्लास्ट, पूरी रफ्तार से, पूरी स्पीड से। ब्लास्ट मीन स्पीड, रन, रश। एज ही हैड होप, जैसा कि उसको उम्मीद थी, बजाय इसके कि वो पर्स को तेजी से लेकर भाग जाता, जैसा कि उसको उम्मीद थी कि मैं जाऊंगा, पर्स खरीदूंगा और लेके भाग जाऊंगा, बजाय इसके कि वो पर्स को तेजी से लेकर भाग जाता, जैसा कि उसको उम्मीद थी। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का पीठ के बल गिरा। ऑन द साइड वॉक, पैदल चलने वाले रास्ते पर। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, उसकी टांगे ऊपर कोड़ गई, बजाय इसके कि वो पर्स को तेजी से लेकर भाग जाता, जैसा कि उसको उम्मीद थी। लड़का अपनी पीठ के बल पैदल चलने वाले रास्ते पर गिरा और उसकी टांगे ऊपर को उठ गई। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड, दराज कद खातून, लंबे कद वाली खातून, कदावर खातून महज पलटी, सिंपली टर्न्ड अराउंड, महज मुड़ी या पलटी। एंड किक्ड हिम, और उसे ठोकर मारी, किक मारी। राइट स्क्वायर, ठीक जागिए पर। राइट स्क्वायर का ट्रांसलेशन क्या करोगे पुत्र? ठीक जागिए पर। इन हिज ब्लू जीन सीटर, उसकी नीली जीन्स के नीचे, उसके कुल्लू पर। सीटर, ठीक हो गया। सीटर मीन हिप्स, सिनोनिम इसका पेपर में आया हुआ है, सीटर। दराज का खातून महज पलटी और बिल्कुल ठीक जाविये पर, उसकी नीली जीन्स के नीचे उसके कुल्लू पर एक ठोकर मारी। देन शी रीच्ड डाउन, फिर वो नीचे झुकी। पिक्ड अप द बॉय बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ा। शर्ट फ्रंट मीन कॉलर, शर्ट फ्रंट का सिनोनिम क्या होता है बेटा जी? कॉलर। लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ा। एंड शूक हिम, और उसको हिलाया, झंझोड़ा। शेक, शूक, शेकन होता है ना, ठीक है। एंड शूक हिम, और उसको झंझोड़ा। अंटिल, यहां तक के हिज टीथ रैटल, उसके दांत बजने लगे। रैटल मीन क्लैटर्ड, चैटर्ड, ठीक है, बजना। फिर वो नीचे झुकी, लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ा और उसको झंझोड़ा, यहां तक के उसके दांत बजने लगे। बेटा इट इज क्लियर? तो सिंपल सा पैराग्राफ है कि वो एक दराज कद खातून थी, उसके पास एक बड़ा पर्स था जिसमें हर चीज थी सिवाय, बताइए जरा, हथौड़े और कीलों के। पर्स की एक लंबी डोरी थी और उसने इसे अपने कंधों के गिर्द लटकाया हुआ था। ये तकरीबन रात के, और वो अकेली चल रही थी जब एक लड़का पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसका पर्स खींचने की रस्सी
लड़के के पीछे से लिए जाने वाले अचानक एक ही झटके से टूट गई, ठीक है। लेकिन लड़के के वजन ने और पर्स के वजन ने दोनों ने मिलकर उसके तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। वजह इसके कि वो तेज रफ्तारी से लेकर भाग जाता जैसा कि उसको उम्मीद थी। लड़का अपनी पीठ के बल कहां गिरा भाई? साइड वॉक पे, साइड वॉक में पैदल चलने वाले रास्ते पर, और उसकी टांगे ऊपर टूट गई। तो महज दराजकद खातून महज पलटी और ठीक साबिये पर उसकी नीली जीन्स के नीचे से कोनों पर एक ठोकर मारी। फिर वो नीचे झुकी, लड़के को गिरेबान से पकड़ा और उसको झंझोड़ती रही जब तक कि उसके दांत नहीं बजे, जब तक कि उसके दांत नहीं बजे, जब उसको झंझोड़ती रही यहां तक कि उसके दांत बजने लगे। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कैरेक्टर्स, स्टोरी एंड दिस पैराग्राफ? ओके हो गया? चलो नेक्स्ट वी विल स्टडी टुमारो। अल्लाह हाफिज।